Okay, guys. Good evening to all of you. I was actually waiting for a few more to join so that we can start. So it's now 8:30. So let's start. I hope that I'm audible to you. So as in the last session, we are again two members in the panel, and you are familiar with both of us. So we'll be starting. Primarily today, we'll be talking about three exams. One is IPM Rohtak, which is right on your head. Then IIM Indore, IPM Indore, IP Met, and then third exam is JIP Met. Okay. So we'll be talking about these three exams. In case you have any query, you can always use the chat box to write your queries. We'll be answering them. I'll try my level best to answer them in the chat box, or let us say during the conversation. So let's start with the IPM Rohtak. So IPM Rohtak, I hope that all of you are writing IPM Rohtak. Okay, to make it more communicative, let me start with a short questionnaire kind of a thing. Let me ask you some questions. Okay. I just want to know that how many of you are in the long-term batches. Okay. So let's begin with this question only. So I'm asking the first question that if you're in long-term batches, if you're in long-term batches or you've been preparing, let us say from last year, or let us say January 22, you can just tick yes, else you can tick no. I would just like to see the responses so that at least I'm clear that how many of you are from long-term batches and how many of you are from crash courses. So there is a poll in front of you. Just tick yes if you're in long-term, no if you are not in long-term. So at least the composition of the class or the session or the audience would be clear to both of us. Okay, no need to write in the chat box. You can directly submit your responses. So there are 24 kids in class, 16, 18, they have responded, 19, 20. Quick, respond fast. We'll move fast. Okay. Move fast. इसमें मतलब इतना कुछ सोचने का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ी है कि मेरे को कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के. हाँ? Either it is yes or it is no. It is, I mean, it is even simpler than a synonym or an antonym question. जहाँ पे आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. वो साला नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो फिर क्यों परेशान होना? That I can see that participants are now 26. 21 of you have responded. Question clear है? So majority of you are from long-term batches. Very few are from short-term batches, है ना? So out of, let us say 21 people, 15 are from long-term batches. Okay, great. चलो ठीक है. मैं हटा रहा हूँ इसको. I'm just finishing this poll. So in case you want to see the results, I mean, as such, this is for our understanding. So just showing it to the my co-host. So this is the response. 77.3% are from long-term batches and 27% people are from the current batches, that is the crash course batches. Okay, stop sharing. Okay, so come to this part of the story. So I think all of you are writing IPM Rohtak. Okay. Let's answer this also. This is one question which is actually important for both of us. This is my, I think, second last question. Okay, I'm launching one more question for you. Just pay attention on your screen. I'm just asking you which all exams you can write. You can tick multiple answers also. Okay, there is no single choice. You can tick multiple choices also. So at least we are aware that how many of you are writing which all exams, and there is some understanding. Okay, so majority of you are taking almost all the exams. I am Indore तो बिल्कुल मतलब सबसे ऊपर है चार्ट में. Okay, JIPMET सबसे कम है. So you have not filled the form for JIPMET. That is, I am Bodh Gaya and I am Jammu. Huh? I mean, hardly 19 people have written JIPMET form, filled the JIPMET form. अच्छा है, आई एम बोध गया. मैंने तो बोला था आपको क्लासेस में भी, इसको भर दो. ओके, सो इज इट गुड टू टेक JIPMET बिकॉज एवरीवन सेइंग कोई वैल्यू नहीं है एंड ऑल? नहीं, ऐसा नहीं है. देखो ऐसा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IIMs, इट इज द वैल्यू ऑफ IIM एंड देन वैल्यू ऑफ कोर्स. सो कोर्स इज ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट व्हिच इज सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर. That is the 3+2 model. And now IFT they've also come up with their course of 5 years. So in सबकी, these are top management schools in the country, है ना? They are top management schools in the country. So you can always, you will always have this thing कि
इनकी वैल्यू हमेशा रहेगी, आज नहीं तो आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद जब पास आउट हो जाओगे, you will have an IIM tag and you'll be probably getting an opportunity to study at an IIM immediately after your graduation. So it's a good deal. I mean, there is absolutely no harm in trying. And when you fill a form, it is always trying for the exam. Filling a form does not mean that you are through to that exam. So all these assumptions of अच्छा है बुरा है, ये तो हम तब लेके आते हैं जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है और हमारे दिमाग में ये रहता है कि ठीक है, नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. अभी तो हमारे पास चॉइस नहीं है ना, तो इसलिए अभी वी हैव टू क्रिएट मोर एंड मोर ऑप्शंस फॉर अस. तो हमें हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट पे एक काइंड ऑफ जिसे बोलते हैं कुशन बनाना पड़ता है, जैसे कि हम मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सके. ये होता है लॉजिक अप्लाई करने का. खैर एनीवेज, अब तो इसकी डेट जा चुकी है, जहां तक मुझको ध्यान है 9 जून इसका डेट था लास्ट. 3 जुलाई को एग्जाम है. आप लोग बोल रहे हैं एसईटी के साथ क्लैश कर रहा है. बिल्कुल एसईटी के साथ क्लैश कर रहा है. तो दोनों बॉडीज को मालूम है कोई ना कोई बॉडी इसको आगे पीछे कर देगी. डोंट वरी, एक दिन के आगे पीछे एग्जाम हो जाएगा. सर, फॉर योर रेफरेंस, वैल्यूज आर देयर ऑन स्क्रीन. SET 63% people are writing, IPM Rohtak 78%, IIM Indore 96%, JIPMET 33%, and NPAT 52%. I'm surprised. IPM Indore is not 100%. There is someone here who is preparing for IPM but not for Indore. हाँ, बिल्कुल हो सकता है वो ACT के लिए कर रहा हो. ACT NPAT मेन टारगेट रहा हो. Okay, so अपन रोहतक से चालू करते. लेट्स स्टार्ट विद रोहतक. ओके, सो टू गिव यू दिस अंडरस्टैंडिंग, IPM रोहतक एग्जाम which is just right on your head as the first exam right now. So it's a sectional time paper. Okay, even CAT, which is like after 3 years you'll be taking this exam for management course. If you wish to move up the cycle of IIMs and want to apply to IIM Ahmedabad, Bangalore or Calcutta, then you'll find that this is one exam. CAT is one exam which is a sectional exam. This is also a sectional test where it is a 40-minute section. Okay, and it is not that difficult. It is I would say slightly easy as compared to other exams. रोहतक में अगर आप 40 मिनट का एनालिसिस करते हो तो it goes like this. So starting from this point, that what are the recent patterns of IIM रोहतक. 21 में क्या हुआ था, अपन पहले उसका बात कर लेते हैं. 21, that is last year, it was a center proctored test. Okay, so okay, Prakhar says last date for JIPMET is extended till today 11:50 PM. Okay, I just watched JIPMET official website. उस पे तो डेडलाइन जा चुका था उसके हिसाब से. तो so total questions and duration 40 40 40 plus 4 minus 1 का marking scheme. Now remember this, last time we talked about 2 exams and both the exams were not having negative marking. Today we are talking about exam. All exams they'll be having negative marking. तो नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम और इस एग्जाम को हैंडल करने में, नॉन नेगेटिव को हैंडल करने में एक फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है. एंड द फंडामेंटल डिफरेंस इज दैट यू हैव टू बी वेरी श्योर व्हेन यू आर मार्किंग एन आंसर, अदरवाइज यू आर लूजिंग 1 mark. So rather than getting a 0, if you mark it, you will get -1. So you have to be very, very careful and selective while attempting a question. It is not that you can blindly attempt a question, and even intelligent guesses should be avoided. If you are not very sure about the answer choice, I mean, then you should not attempt. If you can see with elimination that A भी नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, B looks to be a very sensible answer, and at least 80% you are sure, then you can play with the guess. Otherwise, इसमें तो ऐसा नहीं बोलते कि आप ब्लाइंडली गैस मार दो, जैसे पीछे सर ने बोला CCC कर देना, ऐसा इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें CCC करती तो बिल्कुल CCC हो जाएगी अपनी. तो आपको गैस नहीं मारना है. मार्किंग स्कीम +4 -1 है IPM रोहतक में. ठीक है, देखो ऐसा कुछ आता है पेपर. 40 मिनट्स का 3 सेक्शन दिखेगा और आपको 40 क्वेश्चंस ही दिख रहा है. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर हैंडलिंग अ पेपर which is, let us say, 40 minutes and you have 40 questions in that particular section. So it is like, typically if you have to attempt all questions, it is like 1 minute you are spending on one question. So again, when you have a negative marking, you cannot attempt all questions. So you will have to play in a very intelligent manner. So इसके लिए usually जो 40 minutes का section है, आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप
40 मिनट्स को जैसे आपने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, 10 मिनट्स का 4 स्लॉट्स बना दिया, और 10 मिनट्स के 4 स्लॉट्स में आपने 1 to 10, 11 to 20 एंड देन 10 क्वेश्चंस रख दिया उस 40 मिनट का स्लॉट। अब आपको ये पता है मुझे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स में निकालना है, उसमें आपकी एटलीस्ट रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस हो जाएगा। Otherwise, what will happen? You will not be able to read even all the questions. So it's always advisable to read all the questions, scan the entire paper, and then attempt as and when you know that I can attempt this question, attempt that question, else skip. तो यहाँ पे छोड़ना है मुझे जो नहीं आता, या जिसके लिए मुझे पहले से पता है कि ये मेरी पास्ट अंडरस्टैंडिंग या पास्ट टॉपिक्स में से उस टॉपिक्स में से जो यूजुअली गलत होता आ रहा है, उस केस में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while attempting this kind of a test. Okay. Now, logical reasoning also same thing, 40 minutes, 40 questions. Verbal ability, 40 minutes, 40 questions. In a sectional time limit test, you have to be very, very careful of the time that you are spending on a particular question. अगर फंसे तो पूरा सेक्शन जाएगा, और पहला सेक्शन खराब हुआ तो दूसरे पे इफेक्ट डालता है, दूसरा खराब होता है तो तीसरे पे इफेक्ट डालता है. So be careful when you handle this question. Okay, sir, on this anything? Yeah, see, what happens is there are 40 questions, especially in quant and reasoning. Typically, it's difficult for us to be able to attempt all the questions in the given time, with confidence. Blind guessing is one thing, but otherwise to be able to solve 40 questions in 40 minutes is tough. But you don't know where are the easy questions. Are they in the early part of the section, in the middle, or towards the end? So your time management has to be good, that you are able to reach till the end, that you are able to read all the questions well within the time, so that you are able to select the easier looking ones, the ones which you are confident about, the ones which seem familiar to you, the ones which seem to that you'll be able to do fast, and attempt those questions. It shouldn't be like, say, in quant, a lot of students have this habit, they'll start from question number 1, they'll not even have a glance at the entire section, they just start from question 1 and keep on doing, and on 40 minutes end, probably you would have reached question 20 or 25, and that's it. The paper, the section gets auto submitted. You haven't even seen the last 15 questions. And maybe after the exam, when you discuss with others, or where you see the analysis, and they'll say those 5 questions towards the end were sitters. It's a sitters. Oh, they were the same, we had done in class or from our material or something. And then you say, I never even saw those questions. So that shouldn't happen with you. So all the mock tests that you write and all, you should practice that you reach till the end within the given time. Okay, since you have a window, you can mark questions for review later. So, when we are going through, you can always skip questions. You can, if you are guessing, now guessing, as Kapil sir said, since there is negative marking, only thing is, yes, if you are able to eliminate 2 options with confidence, you may still go with a 50-50 chance. But what you should do in practice tests, you try this approach, see. Sometimes when we are confident, we have eliminated 2 options. And now we think it's a 50-50 game. But finally, when you check your from answer key and all, you realize, no, it was one of the answers which you had eliminated. So if that is happening with you in a particular section, then don't guess even to that extent. If still you are able to eliminate 2 options, sometimes in English it happens, you get confused between 2 options which seem very similar to each other, very close. And so you are confident the answer is one of those. Then you can go with your gut feel and mark an answer. Because if it happens, say, in 6 such questions, the probability is that 3 will be right and 3 will be wrong. So you will be in a positive scoring area. But then you practice that, check that out in your mocks, in your sectional tests and somewhere, and see each section. So your strategy can be a bit different for each section, depending on your strength area, that how much kind of a guessing you are doing. Blind guessing, totally ruled out, but intelligent guessing, where we are saying you're going with a gut feel, or you are able to eliminate 2 options. Okay, that you can do. In which section you should do, in which section you shouldn't do, that will depend on the way you practice and you check out what is working for you. Okay, so if we look at typically quant section last year, again, see, 40 questions, almost everything was covered equally. See, the beauty of these exams is that there is no particular topic from which they'll ask a lot of questions, and and then
Yes, this time also, tentatively it is written that they'll be giving you in the same lines. Okay. So all topics covered with equal distribution of questions, so that you cannot say कि मेरे को एक टॉपिक नहीं आता था जिसके कारण मैं फंस गया और 15-20 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ गए. It's a taste of, logic, application of quant, and the concepts which you've studied, again you are applying them. So it is logical maths, where logic, maths, concepts, everything is going in parallel to each other. Just see, आप मुझे टॉपिक नहीं बता सकते जिसपे ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है, 2-3 क्वेश्चन. हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस नंबर्स जो HCF LCM वाला बेसिक्स है उस पे 4-5 क्वेश्चन था. रेस्ट इट इज 2-3 एवरीवेयर. सो दिस इज क्वांट विच वाज हाईली डूएबल, एंड इसमें अटेम्प्ट भी ठीक ठाक किया था लोगों ने. ठीक है, अच्छे अटेम्प्ट हुए थे इसमें. आई विल शेयर द कट ऑफ्स एंड एवरीथिंग. दिस इज लॉजिकल रीजनिंग. Good thing about Rohtak is, first of all, the paper pattern is very similar to CAT in terms of 3 sections, which sections and the time limits and all. But in CAT, while in 40 minutes you have questions, in 20s, here you have 40 questions. So obviously they have kept the difficulty level lower. And even when for you students, let's forget CAT, when you compare to what Indore does, the IP MAT Indore, the difficulty level of the quant questions in Rohtak is on the easier side vis-a-vis Indore. And Rohtak does not test you on any topics which could be possibly from class 11th or 12th. So all the topics which sir has listed here, the questions which have come in, they're all straightforward ones. So even now, the ones who are preparing and when you are revising, what you could look at is till Rohtak, that is the 26th, you focus on arithmetic and these topics, and after that you will have 1 week for Indore. That time you can focus on higher maths questions furthermore, which are for Indore, because Indore also tests you on these topics, but then they also test you on some of the higher maths questions. Okay, so 27-30 questions one could have easily attempted out of these 40 questions in the given time frame. So you can understand that it was not difficult. It was not very difficult. It was moderate difficult, and easy questions were there. So 27-28 questions का इसमें ठीक ठाक से attempt निकल रहा था. Somebody asked this question, how many attempts? So इसमें तो निकल रहा था, but that is not generalized, or that cannot be generalized on this year also. कि इतना इस बार भी निकलेगा. See, number of attempts in a particular test depends on the difficulty level. I can comment on the last year's test, but I cannot comment on 22 कि इतना ही निकलेगा. तो 27-30 दिमाग में लेके जाना. 27-30 अटेम्प्ट अगर आप करते हो तो आपसे हो रहे होंगे तो ही तो करोगे. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, डिफिकल्ट है, तो मान के चलना सबके लिए डिफिकल्ट है. तो उसमें ये नहीं सोच के जाना है कि चूंकि लास्ट ईयर भी 27-30 हो रहे थे तो इस साल भी मैं 27-30 निकाल लूंगा. ओके. In logical reasoning section, you can see again topics which you have covered almost every topic in class. Fully computer based. हाँ, computer based है सारा एग्जाम. fully और partially computer based क्या होता है यार? मतलब एग्जाम है या तो fully computer based होगा या paper based होगा. So what you will find? You will find that in these topics एक बहुत decent attempt 30 to 32 questions का निकल रहा था इस पेपर में out of 40 in logical reasoning section. Okay. So, sir, over to you on this. The important thing in both these quant and reasoning section is that you should not get stuck on any question or any set. तो सबसे बड़ा ब्लंडर वही हो जाता है स्टूडेंट से. कर रहे हैं ठीक ठाक से चल रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको लग रहा है ये टॉपिक तो इजी है, मेरे किया हुआ है, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, उसको सेकंड टाइम अटेम्प्ट करने लग गए, थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने लग गए कि ये कैसे नहीं हो रहा है, वो ईगो ले लिया या उसमें फंस गए for whatever reasons. तो ये चीज हमें to come out of a set or a question, to leave a set or leave a question, that is also a very important aspect of your strategy of the preparation. ये आपको आना चाहिए. हमेशा mark for review कर ही सकते हैं. We can always come back to that question अगर end में time बचा. लेकिन पहले हम आगे end तक तो जाएं. कितने easier question और होंगे. और कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है. इस तरह के क्वेश्चन मेरे से इस टॉपिक से तो हमेशा होते थे, तो एग्जाम में तो ये कैसे नहीं हो रहा है, तो होना ही चाहिए. ऐसा कुछ भी ईगो पे नहीं रखना है. ऐसा कहीं अपना टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना है. एंड तक जरूर पहुंचना है. मतलब कोशिश ये होनी चाहिए 40 मिनट्स हैं तो 55th मिनट हम 40वें क्वेश्चन तक हमने देख लिया. अब ऑब्वियसली बीच में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे, लास्ट के कुछ मिनट बच गए, वी कैन गो बैक एंड
देन जो हमने रिव्यू के लिए मार्क किए थे जो क्वेश्चन है, उनमें से 2 3 4 जितने क्वेश्चन और हो गए हमने कर लिए। कई बार फ्रेश माइंड से जाते हैं, कोई सीरीज या कोई चीजें इनिशियली स्ट्राइक नहीं हो रही, और थोड़ी देर बाद फ्रेश माइंड से जैसे उसको देखेंगे आपको एकदम स्ट्राइक हो जाएगा, अरे हाँ इसका ये लॉजिक लग रहा है। तो इसलिए उसी समय में हम बार बार ना करें कोई चीज, फास्ट मूव करें एंड तक जाए। Now see, there were 4 passages in reading comprehension, but they were really very small passages of 200, 250 words. And out of these 4 passages, 16 questions were there. Almost 4, 4, 4, 4, or maybe 4, 4, 4, 3. Okay. Sectional time limit का मतलब होता है when you are spending 40 minutes on section 1, after finishing section 1, that is 40 minutes, then only you can move to section 2. किसी ने query पूछा, I am responding to that query. Okay. So section limit का मतलब ये है कि it's a time bound test for a particular section. Now, parajumbles, 6 to 8 questions on parajumbles. 4 sentences where paragraphs were there, sentences were there. You have to rearrange them to form a paragraph. Error spotting, grammar, fill in the blanks, grammar and vocab base, word substitution, that is synonyms, again 4 and 5. So if you look at these 2 components, they were more or less verbal reasoning component, critical reasoning component, and majority of the questions were logic based. Attempt इसमें बहुत आराम से English में 28 questions का निकल रहा था last year. 28 to 30 questions का attempt निकला था. अब तुम 28 to 30 questions का attempt निकालने के बाद जो overall cutoff जाती है वो तुम्हें बता देता हूँ. If I'm not wrong, I've written it. 34, 36, LR 33, 34, Quant 32, 33. It was like थोड़ा सा इसको और मतलब ये तुम सोच सकते हो कि ये तो like clearing sectional cutoffs and everything. Last year, if I'm not wrong, the cutoffs were 265 marks in 2021. Okay, general category candidate 265 marks. Now, according this, you can plan, but again, I am again saying, please do not go with the target mind कि मुझे 270 नंबर लाने मेरा क्वालिफाई हो जाएगा. नहीं, आपको 265 नंबर अगर आता है तो इट्स गुड फॉर यू, आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल जाता है. ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेपर को जैसे सर आपको बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे करते जाना और अपना बेस्ट शो देके आना है. इट इज नॉट अबाउट कि आई हैव टू अटेम्प्ट दिस मच. ठीक है, बट हाँ एक टेंटेटिव आइडिया आपको देना जरूरी था, वो दे दिया है. इस पेपर में एक चीज और था आईपीएम में कि वेटेज दैट दे गिव, 45% weightage is given to the score that you get in the written exam. 15 marks weightage, 15% weightage is given to the personal interview, and past academics 10, 10, 12 they are giving weightage of around 40%. So initially it is like सबसे पहले तो qualify करना पड़ेगा written exam, बाकी चीजें बाद में आती है. But we'll prepare you for interviews also, don't worry. We'll prepare you for any other part also. If there is essay writing, we'll prepare you for that. If there is anything else or something new is introduced, we'll prepare you for that. But if it is an interview, of course, we'll prepare you. So this is all about the cutoffs, and this is how you have to handle. This is how you analyze 21 paper. Now we'll discuss what all you have to keep in mind while attempting 22 paper. Sir. एक ये थोड़ा क्लैरिफाई कर ले, जब 40% वेटेज एकेडमिक्स की है, ये सिर्फ इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है ना उस समय में ही होनी है. इंटरव्यू कॉल जो है इट विल बी बेस्ड इंटायरली ऑन योर रिटन एग्जाम, दिस आईपी मैट. तो इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि अभी 12th या 10th बोर्ड का परसेंटेज अभी लिखा है हमने फॉर्म में और उसके हिसाब से वो 40% वेटेज वहां लग जाएगी. वो अभी उनके लिए नहीं है. जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू हो जाएगा उनके साथ में वो वेटेज भी लगेगी और उनके लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए इस रिटन एग्जाम की वेटेज 45% रह जाएगी ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में. पर इंटरव्यू कॉल के लिए 100% वेटेज सिर्फ एंड सिर्फ रिटन एग्जाम की है. तो आपको इस पे फोकस करना है. और जो गुड अटेम्प्ट्स की भी बात कर रहे हैं, देखो वो मतलब ये है जो जिस सेक्शन में अच्छा है. वेरी फ्यू आर ऑलराउंडर्स दैट हु आर इक्वली गुड इन ऑल द 3 sections. Typically students tend to have one stronger area. For some it is verbal, for some it is reasoning, for some others it is maths. तो गुड अटेम्प्ट्स मतलब वहां जितना हमने जो इंडिकेटिव दिया उतना या उससे ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन में हो, वो वाला चीज मतलब एक इंडिकेटिव फिगर है कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो उसमें तो ध्यान रखो कि वहां तो हम एक्स्ट्रा स्कोर कर लें, क्योंकि कोई वीकर सेक्शन में जो हमारे थोड़े से नंबर औरों के मुकाबले कम रह जाएंगे, वी हैव टू कवर अप ऑन दैट. In the official notification,
which is just released by IIM Rohtak only, they have very categorically mentioned that there shall not be any sectional cutoff for the aptitude test. It is only the oral score. So what sir is saying is very logical here, that you have to concentrate on maximizing the score. तो आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. आप जब स्कोर मैक्सिमाइज करते हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज द स्कोर. ये आपको आगे भी हेल्प करेगा, क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन है ये लास्ट ईयर का बताया था मैंने आपको. इस बार उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को 50% वेट दिया है, ओके, एंड इंटरव्यू को 30%, एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वैट आल्सो दिस ईयर. So in VAT you will be getting 10%. They'll give weightage to VAT also, that is essay writing. Again we'll prepare you for that, don't worry. And then probably at the end they say past academics ko will give 10% weightage. So this is for this year. So what I've discussed with you was as per 21 notification. So this year they have changed it, and the current notification says there is no sectional cutoff, and current notification says that the weightage are now 50%. That is aptitude test weightage. Am I audible? Yes. Okay. So this is now 50%. अरे इस साल का बोल रहा हूं, वैट है 50%. Okay. Then interview it is 30%, and VAT it is 10%. Okay. And past academics it is another 10%. This is their recent notification on their official website. It says so. Okay. Is it clear to everyone? Let's move. Now, to what you have to do, you have to perform in all the sections, but always keep in mind that you have to maximize the score, and that can be done through one section or even from two sections. अगर मेरा एक सेक्शन बहुत ज्यादा वीक है, उस सेक्शन में मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिड्यूस हो सकता है, बट किसी और सेक्शन में मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ सकता है और मेरे को स्कोर भी ज्यादा मिल सकता है. ओके, सो दैट इज टिपिकली व्हाट आईपीएम रोहतक डिमांड्स. हाँ, इसमें एक लफड़ा जरूर पड़ता है. व्हेन वी आर राइटिंग टेस्ट, सेक्शन 1 अगर बिगड़ गया तो सेक्शन 2 पे उसका इंपैक्ट मत आने देना. प्लीज टेक दिस एज अ 3 section separate section test, whereby you will find that आपको किसी भी हालत में पहले सेक्शन को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से लिंक नहीं करना. अदरवाइज साइकोलॉजिकली you will burnt out and you will not be able to attempt that test. Okay, so this is all about रोहतक का अटेम्प्ट है ना. इस पे एक बात और करता हूं, ठीक है, आगे लेके जा रहा हूं. सेक्शनल टाइम लिमिट को ब्रेकअप्स में भी कर सकते हैं. जैसा आई टोल्ड यू कि आप 40 मिनट है, उसको 4 पीस कर लो. 10 मिनट्स का 4 slots, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, and attempt 10 questions in each slot. This will take care of your sectional time limit, and you'll be able to go through all the questions also. Okay, no guesses. Okay, किसी पे अटकना नहीं है, ओवर स्पेंड नहीं करना. वहां पे रुक गए तो फंस जाओगे. इमोशनली एज सर सेड, आपको अपने इसको ईगो पे बोलते क्वेश्चन को लेना, वो आपको नहीं करना है ना. यू हैव टू अटेम्प्ट एज एंड व्हेन आता जाता है करते जाओ, आता जाता है करते जाओ. सर ओवर टू यू. ये देखिए, जो सेक्शनल टाइम लिमिट रखी है ना, वो इसीलिए रखी है, दे वांट ऑलराउंडर. हमने कहा कि हाँ, हर स्टूडेंट अच्छा ऑलराउंडर नहीं होता कि तीनों में ही उतना स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी जो तीनों में अच्छे हों, मतलब you may not be the best in individual sections, but in each section you are good. So they are trying to ensure that by keeping those sectional time limits. Otherwise तो अगर वो 120 मिनट्स दे रहे थे, आप मैथ्स में अच्छे हो तो पता लगा 100 मिनट्स आपने मैथ्स में लगाए, ऑल 40 क्वेश्चंस और ऑल 40 करेक्ट आपने का समय है. आराम से तसल्ली से करें, एंड उसके बेसिस पे थोड़ा सा हम स्कोर अच्छा ले आए, या किसी और सेक्शन में ऐसे हो गए. सो नाउ दे आर लिमिटिंग यू टू spending 40 minutes each in each section. So you have to ensure that you are good in every section, then only you will be able to clear the cutoffs. तो प्रैक्टिस जो हम अभी कर रहे हैं, जितना भी टाइम बचा है,
वो तीनों सेक्शंस का ही ध्यान रखें। अपना फेवरेट सेक्शन कोई प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, दूसरों को नहीं, ऐसा ना करें। दैट इज इंपॉर्टेंट, बैलेंस्ड प्रिपरेशन एंड बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी इन द एग्जाम आल्सो। I hope that all of you are taking mock test also, है ना? Mock test दे रहे हो आप लोग? चलो, let's do one thing. Let's look at a question from you. एक poll लेता हूँ आप सबसे. So let me ask you a question. How many of you are writing test at center? Okay. How many of you are writing test at center? And this is my question. I'll be launching this question. So, okay, there is a spelling error in the question. Just usko thoda ignore kar dena. How many of you are writing test at center hai? It is not 8 center. Center ko khana nahi hai. Tests मतलब typically those 1 hour tests. Mock test. I'm talking about mock tests, whether you are writing them in labs or not. You are using labs to take full length test. Okay. Rest of you are writing at your place. See, writing a full length test at lab will change your environment. You will be coming out from the comfort zone of your room to lab test, lab center, that is time center and lab. वहां पे आते ही तुमको दिखेगा कि तुम्हारा स्कोर फ्लक्चुएट करा और वो नीचे गिरेगा. Because when you are writing it from your place, everything is familiar to you, your surrounding, everything is your own surrounding. So you tend to score slightly more in your comfort zone. Because ये aptitude test है, it's completely based on logic. आपका अगर center पे आके test देते हो, lab में you can use that facility, you can request center manager and just book a slot कि मेरे को एक test देना है, please book a slot for me. So he'll allot a seat for you so that वो सीट फिर वो किसी और को नहीं देंगे और लैब में आपको जगह मिल जाएगा. That will really help you in terms of evaluating yourself. बहुत ही जैसे बोलते हैं सही तरीके से मैं कहना चाहूंगा. तो आप प्लीज उसको सेंटर पे यूज करो. That makes sense. Okay. So, sir, over to you. हम उसके अलावा कुछ हाफ एन आवर 1 आवर टेस्ट भी अभी रखे हुए हैं. रिवीजन सेशंस काफी सारे हमने चलाए हुए हैं. एंड सिंस मोस्ट ऑफ यू आर एज कपिल सर चेक्ड इन द पोल आर लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स, so you know this time if we look at the board exams getting delayed, so that was, you can say, also a boon in disguise. That and also the online option which we got because of the pandemic. तो देखो हर बुराई में कुछ अच्छाई भी छिपी होती है. We were able to hold some classes online also and all, and we were able to complete the entire syllabus before your board exams. Typically जिन्होंने भी पहले ज्वाइन किया था वो सब. तो अभी हमने क्या किया, बोर्ड के बाद जो आपको अभी 3 हफ्ते करीब मिल रहे हैं, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिवीजन सेशंस. डेली रिवीजन सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, some offline, and then along with that some online revision sessions also. Now there are obviously some of you who have joined only online, so you are getting okay that limited additional जब बस जो रिवीजन सेशंस हम ऑनलाइन कर रहे हैं. बट रिवीजन हो रहा है तो आप वो जरूर अटेंड करो. डोंट मिस दो. डोंट थिंक दैट ये तो टॉपिक्स ही दोबारा करा रहे हैं. अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड हैंडआउट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हो रहे हैं. तो आप रिवीजन अटेंड करो. आपके पास पूरा दिन भर है. रिवीजन 2 घंटे या 4 घंटे है. रिमेनिंग टाइम आप अपनी और पढ़ाई करो. एंड अगर आप ऑफलाइन में आ रहे हो, रिवीजन के अलावा वहां पे कुछ टेस्ट करा रहे हैं, वो भी करो. कोई जिस दिन मॉक लेना है उस दिन लैब बुक करके वहां पे भी मॉक भी दो. सारे नहीं तो एटलीस्ट कुछ मॉक्स तो आप लैब में दो, सो दैट इन्वायरमेंट जो अलग हुआ सबने कहा है वो भी आपको अच्छा लगेगा. सो यू नो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर टू गिव यू दैट मोमेंटम एंड पुश बिफोर द एग्जाम्स. और ये सब इंदौर आईपी मैट तक चलता रहेगा. फर्स्ट तक, सेकंड तक, इस तरह से आपके रोज के सेशंस होते रहेंगे. तो आप लोग जितना साथ में मेहनत करोगे, आप हमें उतना ही हम आपको पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. आप अपना एफर्ट लगाओ. आई एम श्योर यू ऑल विल बी सक्सेसफुल. एक ना एक इन सारे जो हम एग्जाम्स दे रहे हैं, 4 या 5 एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं आपका जरूर सिलेक्शन होंगे. Okay,
So let's start let's start with I am Indore also. So again, test is almost on the same lines. It is slightly different because there is a separate essay question section also. थोड़ा different है, but वो non-negative section होता है, essay section बोलते हैं, short answer section बोलते हैं उसे. That is the quant section, but it has, I mean, you would have seen by now in your mock test, it has questions where you have to type down the answer. It's called as type in the answer, theta question. Okay. So मैं आपको उस पे लेके चलता हूँ पैटर्न पे पहले. So the pattern which is expected this year is 40 questions in MCQ, maths, 20 questions essay, 40 questions verbal ability. अब देखो, जो भी एनालिसिस तुमको इस बार के लिए करना है वो तुम 2021 पेपर से नहीं कर सकते, because 2021 paper has reduced the number of questions and reduced the time limit. Due to pandemic, it was conducted in a different model, a different pattern, where questions were also reduced and pattern was also reduced. So whatever you have to typically do an analysis, go to 2019 paper pattern and understand that paper pattern, because this is now exactly on the lines of 2019 paper pattern. 20 को छोड़ दो, 21 को छोड़ दो, वो reduced question है, reduced time है. Okay, so 3 sections देखने को मिलेगा. पहला section MCQ, that is maths. दूसरा section short answers, that is quantitative ability, and third section is verbal ability. There will not be any negative marking for essay questions. Verbal ability, there are 40 questions. So 40 questions will, MCQs will have negative marking. Okay. 4 marks you will get for every question. Now, in verbal ability also, there is a chance that you get a para-jumble in non-option format. If it is non-option format, then again it is a theta question. It will be very categorically written that all non-MCQ and essay questions will be non-negative. That means उसमें आपको आंसर टाइप करना है, वो भी non-negative होगा. और अगर वो ऑप्शन फॉर्मेट में आता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, तो इट इज अ रूटीन नेगेटिव क्वेश्चन वेयर यू विल हैव अ नेगेटिव मार्क. ये क्लियर हो गया ना, तुम्हें समझ में आ गया? ओके. नाउ इंटरेस्टिंगली इफ यू एनालाइज दिस पेपर, देन मैं 21 का सिर्फ ग्लांस करा रहा हूं सो दैट यू हैव एन आइडिया. 21 में ऐसे क्वेश्चंस 10 ही था. देखो, कोऑर्डिनेट, फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, एवरेज, वेन डायग्राम, नंबर्स, एप्लीकेशन, टाइम एंड वर्क, पीएनसी. देन quant 30 minutes and you have 20 questions. So almost 30 questions, 20 questions were distributed from all topics. अब यही एनालिसिस तुम 2019 के पेपर पे जाके करो. 2019 पे करो. This was 2019. Okay. 40 questions objective. Almost all topics were there where number application was having maximum weightage. And then DI questions, they were 5 in number. Then it's like 3, 2, 1. You cannot say that a particular topic is getting more weightage, except it is numbers and the logical application of numbers. And if you look at essay questions, 20 essay questions, it was like coordinate, 3 questions from matrices, they were on a higher side of difficulty. Okay. So I'll just mark them. These 3 questions were on a higher side of difficulty. Logs were also slightly difficult. Rest, average, percentage, sequence and series, sets पे there was 1 question. Even trigonometry was there, functions was there as usual. So if you look at this, 10-11 question का attempt निकल रहा था इसमें 20 questions में से. Out of 20 questions, one could have attempted 10 to 11 questions with around 80% accuracy. And in the 40 question का set, one could have attempted 25 to 28 questions with 80% accuracy. Okay. This was 19th paper. Exactly on this lines, we'll be having this paper. If you look at verbal ability, then see, 2 passages were there. Chote the passage, 300, 400 words with 6 questions each. Okay.
Surprisingly, there were factual questions from passages, which I don't expect from IIMs. But again, 2019 में factual questions था. अगर आपने किसी ने RCPE की क्लासेस ली हैं, RCPE चालू हुआ है आपके, मैंने कुछ सेंटर्स पे करा दिया है. इन RCPE if you will find, दो एक पैसेज है जिसको डिस्कस भी किया गया होगा आपसे क्लास में. वो मैंने किसी भी फैकल्टी ने जिसने कराया उसने आपको बोला है कंप्लीट फैक्चुअल पैसेज है. देयर आर 2 पैसेजेस इन दिस सेट. जो सेकंड पैसेज था जो बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का है, एग्जैक्टली ऑन दैट लाइन पैसेजेस वर देयर. आपने बोला भी है कि ये तो डिफिकल्ट आता है. केसी केस नहीं, केसी केस के दूसरा वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केसी केस तो बड़ा वाला था, वो पूरा एनालिसिस है. दूसरा वाला पैसेज है वो. केसी केस पहला वाला पैसेज है, उसी हैंडआउट की बात कर रहा हूं. हाँ, आर्किमिडीज वाला, यस, वेयर आर्किमिडीज स्टार्टेड रनिंग नेकेड. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज दैट पैसेज, आर्किमिडीज वाला. ओके, तो अब आपको ये देखना है, ऑलमोस्ट इसी लाइन पे फैक्चुअल है. खूब सारा पैसेज में 6 क्वेश्चन मिल रहा है, 6 का 6 फैक्चुअल मिल रहा है, मेजॉरिटी फैक्चुअल मिल रहा है, तो आपका फायदा होगा. फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ, फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट सेंटेंस के साथ, दैट इज पैरा कंप्लीशन भी बोल सकते हो उसे. 6 क्वेश्चन देखे गए. इनकरेक्ट वर्ड यूसेज, फिल इन द ब्लैंक लॉजिकल वर्ड, पैरा कंप्लीशन. एक और सेट आया 3 क्वेश्चन का. नाउ वन इज you have to fill the blank with the appropriate sentence, उसको यूसेज बनाना था. and one was a para completion, para jumble, type in the answer. देखो 2019 में ये टाइप इन है, यानी ऑप्शन नहीं है. इट्स अ नॉन MCQ क्वेश्चन. ओके, देन वर्ड्स बेस्ड यूसेज है, फिल इन द ब्लैंक्स. सो वर्बल एबिलिटी and RC, verbal ability consists of more of logical based, that is critical reasoning, what you do in class. It is pure application of CR or verbal reasoning concepts that you do in class. 35-36 questions हाई अटेम्प्ट निकलता है इस सेक्शन में. वो इसलिए निकला था क्योंकि ये हाईली डुएबल आ गया एकदम से. ओके, सो अगर ऐसा है और ऐसा ही पेपर रहता है तो ये ठीक ठाक अटेम्प्ट देखा जाता है. इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी अप्रोक्सीमेटली, जो मुझको याद है, 100 नंबर के आसपास गई 2019, 100 मार्क्स. तो अब आप देख लो कि आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. अब इसके हिसाब से आप अपनी इस बार की स्ट्रैटेजी बनाओगे. ओके, हाँ, सेक्शनल कट ऑफ होता है इंदौर में, देयर वाज अ सेक्शनल कट ऑफ. अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी इसके हिसाब से बनानी है कि मुझे इनको अटेम्प्ट कैसे करना है. किसके हिसाब से? इसके हिसाब से. ओके, अच्छा, तो कट ऑफ से आ गया ना. 2019 का कट ऑफ ये रहा, देखो. क्वांट 40 मार्क्स, नॉन MCQ क्वांट 16 मार्क्स, and 100 marks in verbal ability. I'm talking about a general category candidate. Okay, 210 was overall cutoff. आपका जो recent mock conduct हुआ था IPM का, मुझे slightly easy लग रहा था as compared to 2019, क्योंकि उसमें है लोगों के 225-230 नंबर हैं, which is a good sign. But कुछ ऐसे भी है जिनके कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, 230 नंबर हैं, but one of the section they are not able to qualify. तो उसमें मेरे को जहां तक लगता है 220-225 ठीक ठाक से स्कोर दिख रहा था. 220 भी अच्छा स्कोर है उसमें, अगर आप सेक्शंस क्वालिफाई करते हो तो. वो थोड़ा सा इजी लगा इससे, तो 10 नंबर बढ़ा सकते हैं अपन. ओके, दिस इज 2019. ये मैं लास्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, 15-16 जून वाला. ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पेपर इज. इसका थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं अपन, कि जो पेपर पैटर्न है इस पे चलते हैं. सर भी इस पे थोड़ा आपको कमेंट कर देंगे कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, आपको इन 40 मिनट्स को हैंडल कैसे करना है. ओके सर, ओवर टू यू. ये आपने देख लिया. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं रोहतक के मैथ्स की बात करें, तो यहाँ एल्जेब्रा और हायर मैथ्स वाले टॉपिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा है. यहाँ मैट्रिसेस भी है, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, सीरीज, ट्विंस, फंक्शंस, उस तरफ के वो क्वेश्चंस हैं थोड़े ज्यादा. इसीलिए का ये वाले टॉपिक्स को आप फोकस करना. 26 रोहतक अगर आप दे रहे हो और फिर इंदौर भी दे रहे हो, तो रोहतक और इंदौर के बीच में जो हफ्ते भर का गैप है, रिवाइज ज्यादा, तब फोकस उन टॉपिक्स पे तब करना. और जो रोहतक के लिए कपिल सर ने आपको बताई थी स्ट्रैटेजी, वो ये जैसे 40 क्वेश्चन 40 मिनट. तो क्योंकि ये आप जब मॉक्स में और सेक्शनल टेस्ट वगैरह में भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको समझ आएगा. क्योंकि
होता यही है कि हम करते चलते हैं और 20-25 क्वेश्चन पे 40 मिनट खत्म हो जाते हैं। तो ये आप ट्राई कीजिए कि 10-10 क्वेश्चन का आप इनको 8-8 मिनट के ले लीजिए, 10-10 मिनट नहीं हो कि जिससे लास्ट में कहीं कोई ओवररन हो गया हो, कुछ 8-8 या 9-9 मिनट। और दैट मीन्स आपको टाइम मैनेज, आपकी घड़ी और उस पर आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है टू टीयर योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट। क्या आप फर्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट दिए, ठीक है, अब हुआ क्या, आपको सारे क्वेश्चन ही डुएबल लग रहे हैं और आप करते चले गए और 6 क्वेश्चन हुए और 10 मिनट हो गए, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो अगले भी मेरे को आते हैं, तो अब आपसे रहा नहीं जा रहा और आप वही कर रहे हैं। तो जो आपने सोचा था कि पहले 10 क्वेश्चन 10 मिनट, उसकी जगह वो 15 मिनट हो गए, फिर अगले में कहीं हो गया, तो होते होते होगा क्या, लास्ट 10 क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए। तो ऐसा ना हो जाए, तो हमें डिसिप्लिन में बहुत रहना है। वी कैन ऑलवेज मार्क क्वेश्चंस फॉर रिव्यू एंड अटेम्प्ट देम, अगर एंड में आके हमारे पास बाय चांस कहीं टाइम बच गया, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम बचता नहीं है, 40 क्वेश्चन 40 मिनट हैं। और ऑब्वियस बात है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, इसलिए आप ये मत सोचो। अब आपने कट ऑफ्स भी देख लिए, अभी कपिल सर ने बताया +4 पे है, मतलब अगर हम कौन इस सेक्शन की बात करें तो 160 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स, और कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको 160 में 100 लाने, वो तो इंग्लिश में लाने थे, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। यहाँ तो उसके आधे भी नहीं है, 30% के आसपास की बात हो रही। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें 40 के 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें ढूंढने हैं और इजियर अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट वी कैन मेक आवर स्कोर एज बिग एज पॉसिबल। सेम थिंग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जो शॉर्ट आंसर वाले जो हैं, ये जो क्वेश्चन हैं टीटा क्वेश्चन में बोलते हैं, तो इनमें भी ये हो जाता है, क्योंकि सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में ऐसा ना हो जाए कि आप कोई क्वेश्चन को बार बार अटक जाए क्वेश्चन। तो वही वाली बात है जो और जगह पहले भी कही है रोहतक में, तो हर एग्जाम के लिए वो रेलेवेंट है कि हमें किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। See, we are regularly asking you, all faculty members are asking, I am saying, we are saying here in this room, take mocks and do a reason analysis of all wrong answers, especially in VRC, do a reason analysis. In quant, try to understand whether the concepts are clear or not, or I'm making some silly mistakes, or due to speed, I'm losing marks. And in LRDI, try to understand how to identify right set, correct set, so that again, you're on a right track. But ensure that analysis of a mock post-test analysis is so strong that you know where I went wrong after the test. कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया तो mock में ही तो हुआ है. You have to ensure that ये गलती, same thing should not be repeated in the test that you are taking on the D-Day. वो बस उसका ध्यान रखना है. VARC में जितना strong reason analysis करोगे, उतना it would be beneficial for you. आप reasons ढूंढो wrong answers के कि why you made this mistake. आज भी जैसे मैं एक क्लास में IPM में था, आज भी ऐसा निकल के आ रहा था, ये बहुत चॉइस ज्यादा अच्छा लग रहा है ना. तो ये नहीं होता है, आपको बार बार बोल रहा हूं, चॉइस अच्छी नहीं होती है, आपको रीजन चाहिए कि ये चॉइस सही क्यों है, दूसरी क्यों मार्क नहीं करी. दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक एट. ओके, सो दिस इज अगेन व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ मॉक्स इज. सर, ओवर टू यू. कई स्टूडेंट्स की आदत होती है that they once they write an exam or once they appear in a test and then they'll just check, okay, what is their score, and that's all. They say whatever is done is done, I can't change that score, so why should I bother about analyzing it? So that is the biggest mistake we do when we are talking of a competitive exam. Any mock that you're writing, any sectional test that you're writing, any exercise you're doing from the book, remember at the end of the day it is just a mock, it is not the actual exam. एक्चुअल एग्जाम जब देके आप बाहर आए, अब आप बोलो उसका एनालिसिस क्या करना, जो आना था स्कोर आ गया, देन यस, दैट इज पॉसिबल. यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन एनालाइजिंग योर एक्चुअल एग्जाम, दैट्स ओके. बट इन द मॉक्स you will improve only once you analyze those. When you see whether your judgment of selection of questions was okay, whether your time management was okay, whether you made any silly mistakes or not, whether which questions you did not know, so which topics were they from, so where do you need to put in more efforts before you write the next mock or before you appear for the actual exam.
Now, all these things, your strengths and weaknesses, all these will come through the analysis. So that analysis is very, very important. You know, typically as a thumb rule, we say if it's a 2-hour mock, you should be spending maybe double that time in analysis. Analysis includes solving the questions which you did not attempt in the exam, solving the questions which you got wrong in the exam, and then doing all the analysis of which were the easier ones, which should have I attempted, which I should have skipped. You know, for even the questions you got right, were they just more of some guesswork that you got that right, or otherwise also was there a better, quicker way of doing those questions? Sometimes you may have got a question right in quant, but you may realize when you replay in your mind what you were going through when you were writing that exam, and you realize that, you know, I spent maybe 3-4 minutes on that particular question. I got it right, but then was it worth it? You know, because you missed out on attempting some other question. And then was there a quicker way of doing it? And then you realize, oh, had I, you know, just used the option approach, I could have done it faster. Or there was some other approach which did not strike me at that time, and it could have been solved within a minute. So now this all will come through analysis. So it's very important that you focus on analysis of every mock. Okay, so let's move to the last exam. Quickly finish it in next 10 minutes. So that, because since I mean, very few of you are writing this exam, still just understand and try to understand the pattern of GIPMAT. Again, a different test. Okay, so a different type. This test may, there are 3 sections: quantitative ability, DINLR, VA and RC. Total number of questions 100. Last year 150 minutes का था, इस बार भी 150 minutes का है. 3 to 5:30 time allotted है. Computer based test है and 400 marks का paper है, +4 -1. All exams that we have discussed today, they are +4 -1. So they are having 1/4 of negative marking, that is 25% का नुकसान है. Okay, so GIPMAT primarily I am Bodh Gaya, I am Jammu. Okay, so they are accepting these scores of GIPMAT. आने वाले काल में GIPMAT शायद और भी बड़ा हो जाएगा. Other IIMs will also accept through this only. Now, GIPMAT is exact CAT pattern of 2018. Okay, 18. 100 questions. 33, 33, 34. CATMAT was 32, 34, 32, 30, 34, 34, 32, and then another 34. ऐसा कुछ था, बहुत छोटा सा डिफरेंस था. एक नंबर ऊपर नीचे का डिफरेंस है, बाकी यही पैटर्न होता था लगभग. Now, it is 3-section test. You have 250 minutes, है ना? You have 250 minutes, 150 minutes, sorry, 2.5 घंटा, है ना? 150 minutes. अब इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि आपको 150 मिनट्स आपको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. ओके, तो आप जब अपने हिसाब से खेलते हो 150 मिनट्स पे, तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस टेस्ट. इसमें जब भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करने का बात आता है तो हमेशा ऐसे बोला जाता है, आप इसको रूल को सीख लो. इट्स अ थंब रूल. 150 मिनट्स का टेस्ट है. यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस. अब आप इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 140 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का एक बफर रख लो, जो आप लास्ट में आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपका स्कोर बूस्ट अप कर सकता है, तो आप वो 10 मिनट्स उधर स्पेंड कर दो. तो ये आपका एक तरीके से बफर टाइम होता है, विच यू कीप एज अ स्टॉक. आपको जहां लगाना है वो लास्ट में डिसीजन लोगे. आप 140 मिनट्स को डिवाइड करते हो 3 पार्ट. नाउ लेट्स से 34 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एबिलिटी, 33 क्वेश्चंस ऑफ डीआई, and then you have quantitative ability, 33 questions. So suppose I'm giving you a hint कि I'm spending 50 minutes here and I'm spending 40 minutes here and 50 minutes here, 50 minutes here. Okay, so I'm distributing. एक बार के लिए distribute कर रहा हूँ, फिर change करेंगे. 50, 50, 100 और 40 मिनट इधर. ठीक है, अपन ने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया. आपको लगता है नहीं यार, आई नीड सम 10 मिनट्स हेयर एक्स्ट्रा, यहां से निकाल सकता हूं या यहां से निकाल सकता हूं. वो आपको देखना है कि आप कहां से निकाल के 10 मिनट्स अफोर्ड कर सकते हो ऊपर देना. आप पहला एक फ्रेम बना लो 50, 50, 40.
इसमें +5 -5 -10 जहां जहां से करना है, जैसे से करना है, उसको उठा उठा के लाते जाओ, स्ट्राइक ऑफ करते जाओ, उसको देते जाओ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फाइनली चाहिए इधर तो 60 मिनट्स और इधर मैं 50 में हैंडल कर लूंगा, 110 और इधर में 30 में ही हैंडल कर लूंगा 140, तो ये एक तरीका होता है सोचने का। ये अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर योर स्ट्रेंथ एरिया। लगता है कि मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है तो यू कैन स्पेंड 60 मिनट्स। लगता है नहीं 50 मिनट में 33 क्वेश्चन निकाल लूंगा तो स्पेंड 50 मिनट्स। सो 50-50-40 की साइकिल पे +- 5 करते जाओ, अपना हिसाब से, अपना स्ट्रेंथ का हिसाब से, अपना वीकनेस के हिसाब से डिसाइड करो। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट डिस्ट्रीब्यूटिंग 150 मिनट्स। आगे चलते हैं देखने के लिए कि सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने दिए। देखो अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जिपमेट का। 15 क्वेश्चंस, ओके, अरिथमेटिक आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस, ओके। इसमें अगर मैं ये दो और ऐड कर दूं अरिथमेटिक एंड जीपी वाला, तो इट इज लाइक 17 क्वेश्चंस, which is almost 50% of the entire section. अब बाकी ज्योमेट्री, numbers, algebra and set theory and trigonometry. So you can handle paper with algebra and arithmetic also. Okay. Set theory एक क्वेश्चन देखेगा, algebra, arithmetic, numbers ये कर लिया अगर तो भी काम निकल सकता है। बट अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से सारा एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक ठाक अटेम्प्ट निकल रहा था लास्ट ईयर के पेपर में। अभी मैं आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ भी दिखा दूंगा सर ऑन दिस। देखो ये एक और था, एक रांची भी कर रहा है 5 ईयर प्रोग्राम जो कि इंदौर के थ्रू ले रहा है। ठीक है, इनिशियली फर्स्ट ईयर वो यहाँ इनके साथ लेना चाह रहा था जिपमेट, अब वहां शिफ्ट हो गया इंदौर। तो यहाँ ये 2 ही आईएम्स हैं, बट द गुड थिंग इज आप इनमें घुस गए, आपके पास ऑप्शन है 3 साल बाद आप कैट देना चाहते हो और एमबीए कहीं और से भी करना चाहते हो, वो ऑप्शन है। नहीं तो आप आईएम में तो घुस ही चुके हो, आईएम से आप एमबीए करके निकलोगे। अब उस हिसाब से जब आप हम दे रहे हैं जिपमेट का आप देखेंगे तो ये डिफिकल्टी लेवल इंदौर से कम होगा, इट विल बी क्लोजर टू द रोहतक काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल। अब वो तीनों में सब में फर्क किस चीज का आया है कि यहाँ सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और ये कैसे आएगा, ये आप सडनली सोचो मैं एग्जाम के दिन जैसे अभी सर ने कहा इतने मिनट है मैं उस दिन बना लेंगे हम स्ट्रेटेजी और कर लेंगे, तो नहीं हो पाता। ये मॉक्स इसीलिए जरूरी है, उनमें जब आप ये ट्राई आउट करोगे स्ट्रेटेजी कि मैथ्स को 50 मिनट देने हैं कि 60 मिनट देने हैं, इंग्लिश मेरे से 30 मिनट्स में हो जाती है, या वो 30 मिनट में मेरे को लग रहा है मेरे से और क्वेश्चन भी हो सकते थे लेकिन टाइम कम पड़ रहा है, मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को 35 देने की जरूरत है या 40 देने की जरूरत है। और अगर मॉक्स कम पड़ रहे हैं, आप बोलो सर मॉक्स तो बहुत कम है, तो सेक्शनल टेस्ट 3 सेक्शनल टेस्ट को मिलाया अलग अलग, एक मॉक बन गया। ठीक है, 3 एक्सरसाइज मिलाई, एक मैथ्स की, एक रीजनिंग की, एक इंग्लिश की, और एक वो मॉक बन गया। तो आपको प्रैक्टिस उस तरह से करनी है। अब ये रिवीजन स्टेज जब है कि मॉक्स की तरह से प्रैक्टिस करें, और उसमें हमारी स्ट्रैटेजी जो हम एक सोच रहे हैं टेंटेटिव बनाई वो अप्लाई करी, फिर उसका एनालिसिस। जब हम एनालिसिस कह रहे हैं, एनालिसिस इज नॉट जस्ट राइट रॉन्ग कौन से हुए और क्यों हुए, वो सारा चीज करते हैं, जो नहीं किए थे वो करते हैं, जो रॉन्ग हुए थे वो करते हैं, उसके बाद बैठ के ये एनालिसिस करते हैं ये सारा कि क्या टाइम दिया था हमने किस सेक्शन को, वो ठीक था क्या हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हम सारे क्वेश्चन देख पाए थे, क्या हमारा जजमेंट ठीक हुआ था क्वेश्चन का, आगे के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू। देन वी सी दैट between two students who have put in the same hard work or their knowledge level is the same, the one who is able to strategize better in this way, the one who has analyzed mocks, will be able to get a much better score in an exam, in such competitive exams, than the other. So it is not just a matter of knowledge. बेस तो चाहिए ही नॉलेज का, आपको मेन नॉलेज नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी से नंबर ले आएंगे नहीं आएंगे, पर सिर्फ नॉलेज से नंबर लाएं वो भी नहीं आएंगे उससे। तो यू नीड टू हैव दैट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज बैक्ड अप बाय स्ट्रैटेजी। Okay. So it was like an altogether different set. 2 आरसी का छोटा छोटा पैसेज दिया था उन्होंने, पैराग्राफ था इनफैक्ट, वो उस पे एक एक क्वेश्चन ही था। इनफैक्ट मैं उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं बोल के वर्बल रीजनिंग का जो छोटा पैराग्राफ आप क्लास में करते हो क्रिटिकल रीजनिंग हैंडआउट्स में, इट वाज ऑलमोस्ट ऑन दैट लाइन। आपको एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना था और एक में इसका स्ट्रेंथनिंग करनी थी पैराग्राफ की, दैट इज आर्गुमेंट की। Other than that, fill in the blanks, ठीक ठाक 8 क्वेश्चन देखे गया। Parajumbles, there were 4 sentence set, 3 questions were there,
एरर्स, ग्रामेटिकल, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव बेसिस, ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर। तो अब ग्रामर का रोल देखते हैं इसमें। देखो, ये ग्रामर का रोल, ये ग्रामर का रोल, ये ग्रामर का रोल, ये ग्रामर का रोल। तो मैं अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस को वोकैब का भी रोल मानता हूं तो भी आपको 10 क्वेश्चन इसमें ग्रामर का मिलता है। एंड प्लीज डू रिवाइज ग्रामर फॉर all exams, not only for this exam, because rule based questions and exceptions to the rules, they are certainly asked in these exams at UG stage. Okay, if you look at logical reasoning section, it was very well distributed, and these are the topics. I think even distribution of all questions, जैसा आपको दिख रहा है, तो आपको टॉपिक्स का आइडिया लग जाता है। टॉपिक्स वही है, बस पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ इसमें लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड है। ओके, देन इन 2021 एज सच आपको मार्क्स में कट ऑफ नहीं दिखा कहीं ऑफिशियली, बट इन्होंने बड़ा कैटेगरीली आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने लिख के दिया था, जगह जगह मिला है, जो इन्होंने अनाउंस किया कि इट वाज लाइक फॉर जनरल कैटेगरी दे सेड 83 परसेंटाइल पे इन्होंने कॉल किया। किसने? बोध गया ने। ओके, और जम्मू ने कॉल किया अराउंड 81 परसेंटाइल पे। ओके, नाउ लेट्स से टेस्ट टेकर्स पर, आई एम अज्यूमिंग कि 15,000 टेस्ट टेकर्स तो सर रहा होगा, कम ही रहे होंगे ये, हाँ, तो पॉपुलराइज ज्यादा नहीं किया। हाँ, तो 17 मतलब 83% का मतलब जानते हो आप लोग? 83 परसेंटाइल का 17% ऑफ टेस्ट टेकर्स। तो मैं मान के चलता हूं अगर 10,000 टेस्ट टेकर्स है, ओके, तो रफली अराउंड 1700 लोग हैं जिसको ये 60 सीटों के लिए कॉल किया होगा, यानी 1:3 का रेशियो पे। ओके, 1 for 1 seat they are calling 3 candidates, like say इंटरव्यू भी होगा, so इंटरव्यू रिजेक्शन होगा, it is usually 1:3 का रेशियो। now it is percentile terms में है, इसकी एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम का ये अवेलेबल नहीं है कि किस कट ऑफ पे आया था। ठीक है, अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो 60 मिनट्स क्वांट इजीली दिया जा सकता है, LRDI 40 मिनट्स में हो सकता है, तो 100 मिनट इधर चला गया, 40 मिनट्स VRC चला गया, बफर है 10 मिनट्स का। इस पे आप खेल सकते हो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए या उस सेट पे जाने के लिए जो आप छोड़ के आए हो, बट आपको लगता है कि इफ आई अटेम्प्ट दिस लेटर ऑन देन आई विल बी एबल टू स्कोर मोर। नाउ यू फील नहीं 50 मिनट दूंगा क्वांट को, इससे ज्यादा नहीं, 50 ही DI को दूंगा, LRDI को दूंगा, तो इक्वल दूंगा दोनों को 50-50। then in that case 50 plus 50 100 plus 40 140 and then 10 minutes का बफर। आप इसमें अपना ±5 ±10 जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, ये आपका बेसलाइन है। ओके, अब इसमें one more thing that you have to keep in mind when you are distributing time on your own, you have to actually attempt those questions which you know so that you don't waste time, mark for review करके आगे चला गया। Do not overspend time on any question, otherwise ये जो आपने खुद के लिए मिनट्स अलॉट किया है, you will not be able to utilize them properly, तो आपका ये टाइम खराब हो जाएगा, है ना। Leave out the question on slightest of doubt, बिल्कुल नेगेटिव होगा तो आप छोड़ दो, आगे चले जाओ, और अपने 60 मिनट पे ध्यान रखो, अपने 40 मिनट्स पे ध्यान रखो, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम को इतना टाइम देना है। कुछ लोग मेरे से वॉच के लिए पूछ रहे हैं, यूजुअली इन एग्जाम्स में वॉच ले जाना अलाउड नहीं होता, आपके पास ऑन स्क्रीन वॉच चलता रहता है, आपको ऑन स्क्रीन वॉच से ही सब कुछ खेल खेलना है। तो आप जो टाइम में भी टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट, सब में ऊपर घड़ी चलता रहता है, तो यू हैव टू यूटिलाइज दैट वॉच ओनली। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूजुअली सब में मिलेगा, तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर सब में अवेलेबल होता है, बट वो बहुत कमरसम होता है, उसे यूज करना इतना आसान नहीं होता, अपने को उससे ज्यादा तो खुद से कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सर, ओवर टू यू। बस देखो, यही देखो, यहाँ पे LRDI में DI की वेटेज कम है, रीजनिंग ज्यादा है। इंदौर में बात करें तो LR बिल्कुल ही नहीं है, जो DI थोड़ी सी मैथ सेक्शन में ही आ जाती है। ठीक है, रोहतक में वो बैलेंस्ड है, ठीक है, सब में, इसलिए हर एग्जाम का अपना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको उस एग्जाम से पहले कुछ दिन बस उसी तरह का देखना है, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट। और इंग्लिश की बात करें तो सब में हमें पढ़ना तो वही है, तो जो आपकी तैयारी अगर रोहतक पहले आप दे रहे हो तो वहां तक हो गई, तो वहां आपको इंग्लिश तो वहां पढ़ लिया, उसके बाद आप स्पेसिफिक फोकस कर सकते हो। इंदौर बाद में होना है, उसके हायर मैथ्स से फोकस कर सकते हो, उसके बाद इंग्लिश वहां तैयारी हो चुकी है। जिपमैट या ACT दे रहे हैं तो
उसमें तो हमें LRB सारा आगे भी पढ़ते रहना है थोड़ा थोड़ा। तो पर्टिकुलर एग्जाम्स के हिसाब से तो आप पहले से अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए कि कौन सा टॉपिक हम कब रिवाइज करने वाले हैं। एडिशनल एफर्ट्स जो आप क्लास में हम कर रहे हैं, हम सारी चीजें करा रहे हैं बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं। उसके अलावा आपके पास दिन में आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप 4 घंटे हमारे साथ लगा भी रहे हैं, कुछ एक ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, 4-5 घंटे, स्टिल अदर देन दैट 8 to 10 आवर्स एवरी डे, एक सिर्फ 2-3 हफ्ते बचे हैं, इसमें इतना आप थोड़ा और घर पे उतना करें। ये कितने हफ्ते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा जब इनका फाइनल एडमिशन प्रोसेस वगैरह हो रहा है, बीच में आपको छुट्टियां गैप सब मिल जाएगा, रिलैक्स करने के लिए भी मिल जाएगा। अभी एक बार थोड़ा सा ऑल आउट एफर्ट कर लीजिए, सो यू नो यू विल बी एबल टू गेट इनटू वन ऑफ दीज ड्रीम कॉलेजेस। सो ये जो ग्रेजुएशन की बात हो रही होती है कि हम ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं, तो हमारा पीयर ग्रुप कैसा है, ठीक है, उसकी लर्निंग बहुत होती है, उसके कारण आपका करियर काफी अफेक्ट होता है। और ये IPM वगैरह में जाने में देखो, SET NPAT में तो फिर भी ये है कि ग्रेजुएशन करके अगर आप MBA की सोच रहे हैं तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, और MBA CAT देना है, भी देना है, उसके आएंगे। और IPM अगर किसी भी IIM में गए तो वहां तो बहुत अच्छी एक आपको उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि आप 5 साल वहीं पढ़ें और IIM से डिग्री लेके निकलें। तो इतना अच्छे वहां से करियर है हर तरीके से, इतना अच्छा आपके पास मौका है। और जैसे हम जिपमेट की बात कर रहे हैं, रोहतक की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, तो इन्होंने बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं की है अपनी, so still the number of candidates who are writing these exams is still not that great. The competition is not that intense. If you have prepared well, so you may get this opportunity, you know, of getting into an IIM, you know, एक तरह से slightly easier way rather than, you know, writing CAT after your graduation and then, you know, facing that competition from those lakhs of students and then being able to get into these colleges. So take full advantage of this opportunity that is available to you. Just 2 or 3 weeks remaining. Just give your best efforts, and with our guidance and your efforts, I'm sure you all will succeed. Okay, guys. So whatever you have asked, I've probably answered that so far. Aradhna, again, I would say you cannot go with the mindset, prefix mindset, even in mocks also. बल्कि मॉक्स में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मॉक्स में आपको डिफिकल्टी लेवल हमेशा वेरी करता है। सो गो विद द माइंड कि मैं जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे खेलती जाऊंगी, एंड देन आई विल बी ट्राइंग टू मैक्सिमाइज माय स्कोर एज कंपेयर टू द प्रीवियस मॉक दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर। सो गो विद दैट माइंडसेट। ओके, एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? If we don't get admission, is it worth to drop a year and give it a year later for IPM Indore? See, don't think all this right now. Okay, this is not the right time to think all this. But even if you start your graduation, then just in the second year of your graduation, you will start with your CAT preparation for next year. That is third year. So rather than moving backside, you can move always ahead and join a normal 3-year degree course, and then start your preparation right from your first year, second year, middle of the first year, second year for your CAT. तो इसलिए अभी नहीं सोचना है ना, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, टाइम है अभी। How should we manage the anxiety while giving exam? Okay, see, first of all, there are 2 places where anxiety comes. First is मेरा खराब हो रहा है, सबका अच्छा हो रहा है। Then second is मेरा पहला सेक्शन खराब हो गया, मेरा दूसरा सेक्शन अभी इससे खराब हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों से तो बाहर आना पड़ेगा कि सेक्शन जुड़े हुए नहीं। फर्स्ट। सेकंड, हैव दैट मच फेथ ऑन योरसेल्फ कि अगर ये मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने तो भैया दुनिया की सबसे अच्छी तैयारी की है, तो ये सबको डिफिकल्ट लगना चाहिए। दैट मीन्स मुझे मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नेचुरली लो रखने हैं, तो आपको एंजाइटी नहीं आएगी। Then secondly, when you are taking test, take this as another mock that you are taking at time lab. तो आपको फिर लगेगा कि मैं एक मॉक ही तो दे रहा हूँ, ठीक है दे देता हूँ। इतने सारे मॉक्स का आपका टाइम टेबल देख रहा था मैं, इतने सारे मॉक्स हैं, तो आप मान के चलो कि आप एक मॉक ही दे रहे हो। तो अगेन दैट विल यू नो कीप अवे फ्रॉम एंजाइटी। अच्छा, दूसरा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंजाइटी करने से अगर स्कोर आ जाएगा तो अपन दोनों साथ में मिलके करते हैं।
ज्यादा आएगा। कीप दिस थिंग इन माइंड कि एंजाइटी से स्कोर नहीं आता, किसी प्रकार का पैनिक होने से, वहां पे हड़बड़ाहट करने से स्कोर नहीं आता। स्कोर विल कम व्हेन यू विल बी कंपोज्ड, काम एंड यू विल डू द क्वेश्चंस। ये फैक्ट है, इससे नहीं दूर जा सकते। ओके सर, ओवर टू यू ऑन दिस क्वेश्चन। Your competition is not with others because you don't know how others have prepared and how others are attempting the exam. Your competition is only with yourself. What? That you should give your best. You should continuously improve. And that's all. So if you are happy with your performance, that's all that matters. होगा या नहीं, वो नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं, दूसरों ने अच्छा किया, आपसे ज्यादा मेहनत की, आपसे बेटर कर लिया, तो दूसरे का हो जाएगा, आपका उसमें नहीं हो पाएगा। नथिंग टू वरी, यू शुड फील दैट यू गेव योर बेस्ट। आपको ये लगता है कि नहीं, अगर थोड़ा और तैयारी करते हम अच्छा कर सकते तो यही टाइम है, थोड़ा और तैयारी कीजिए, आपके एफर्ट्स पे कमी मत रखिए, दैट्स ऑल। सो फिर स्ट्रेस की कहाँ बात है एग्जाम में? एग्जाम में यू हैव टू जस्ट डिलीवर व्हाटएवर यू हैव प्रिपेयर्ड। तो आपने अच्छी तैयारी की, देन यू आर फाइंडिंग द पेपर टफ, व्हिच मींस द पेपर इज टफ फॉर एवरीवन। सो दिस टाइम दे हैव सेट द पेपर टफ, ओके गुड। जितना टफ पेपर होता है तो जिसमें ज्यादा अच्छी तैयारी जिन्होंने की होती है उनके लिए फायदेमंद होता है, बिकॉज देन दैट डिफरेंशिएट। सीधा सा जिन्होंने बिल्कुल ही होता है ना, इजी में तो बिना तैयारी के भी कोई आके एकदम अच्छा स्कोर कर जाए, तो वो चीज ही खत्म हो गई। तो यू शुड फील हैप्पी, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर पेपर टफ आए तो आपके फायदेमंद है, तो स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए। आपसे कम अटेम्प्ट है, दूसरों के भी कम हो गए, इट इज ऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस। वो तो एग्जाम से जब बाहर आएंगे औरों से डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा औरों की परफॉर्मेंस कैसी है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर भी कभी आपको जब भी लग रहा है, मॉक से भी लग रहा है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा अपने सिर्फ पास्ट गुड परफॉर्मेंसेस के बारे में सोचें। आपने 10th में अच्छा किया, 12th में अच्छा किया, कोई और एग्जाम्स कभी भी जो आपने दिए, कोई मॉक्स दिए, जो भी अच्छा किया, जो आपकी गुड फीलिंग्स हैं, आप उनको दिमाग में लाइए। आप एक क्या होता है, कई बार हम एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। एग्जाम से पहले भी कई बार वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप बैठ के सोचने लगते हैं, अगर मेरा अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी मेहनत बेकार, फिर मेरा कैरियर का क्या होगा, ओहो उस दिन गड़बड़ हो गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये सेक्शन टफ आ जाए, मेरे को मुश्किल लग, आप एक नेगेटिव स्पाइरल में जाते हैं, तो आपको माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो उसी नेगेटिव माइंडसेट से दे रहे हैं। जैसे 2 क्वेश्चन नहीं हुए, हाँ यही देखो, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये तो मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो उसकी जगह आपको एक पॉजिटिव स्पाइरल में रखना है अपने आप को। एग्जाम से पहले भी आपका जो माइंडसेट है, आपको अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन देना है। आई विल डू वेल, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, आई एम श्योर आई विल डू वेल। ठीक, औरों से ज्यादा अच्छी मेरी तैयारी हुई है, आई विल बी एबल टू डू बेटर, और मैंने पहले भी अच्छा किया है, इस बार भी अच्छा करेंगे। तो जब उस पॉजिटिव माइंडसेट से आप चलेंगे तो अपने आप स्ट्रेस भी दूर होगा, पेपर भी ज्यादा अच्छा होगा। Fair enough, guys. So whatever you have asked, I have shown, and you would have, I hope you would have taken those screenshots. So I think we have answered almost all the questions. Wish you all the best, guys. May God bless you. And keep cool, keep calm, keep composed. Last के दिनों में mock test देते रहो, उनका analysis करते रहो। बहुत ज्यादा अपने आप को पैनिक नहीं करना, बहुत weak areas पे काम नहीं करना। Try to ensure that you are working on your strong areas, क्योंकि अब strong areas आपके ओवरऑल स्कोर को शूट अप करेंगे एज कंपेयर टू लेट अस से एनी वीक एरिया। तो मैं नहीं कह रहा मेहनत पे कोई कमी आने दो, मेहनत पूरी जारी रखो, बट कीपिंग इन माइंड दैट पैनिक अटैक्स, एंजाइटी विल नॉट इंप्रूव स्कोर्स, ये स्कोर को खाते ही हैं। ओके, सो यस यशेश बोलने ही जा रहा था, डोंट वरी। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर रिजल्ट्स एंड कीप रॉकिंग ऑलवेज। विश यू ऑल द बेस्ट, गाइस। मे गॉड ब्लेस यू। ओके, ऑल द बेस्ट।